دریا چناب کے کٹاؤ نے جنگ کے دیہات متاثر کر دیے۔ موزہ چک کچا اور آبادی عنایت چاہ کے مکین پریشان، گھروں اور زرعی اراضی کے نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ انتظامیہ سروے کے باوجود کوئی منصوبہ نہ بنا سکی۔ آپ کو بتا رہے موزہ چک کچا اور آبادی عنایت چاہ کے مکین پریشان، گھروں اور زرعی اراضی کے نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ انتظامیہ سروے کے باوجود کوئی منصوبہ نہ بنا سکی۔ دریا چناب کے کٹاؤ نے جنگ کے دیہات متاثر کر دیے۔ موزہ چک کچا اور آبادی کے عنایت چاہ کے مکین پریشان ہیں۔ تفصیلات جانیں گے اویس خان سے۔ کے باعث جو ہے وہ کئی کلومیٹر رقبہ جو ہے دریا موجود، یہاں پہ کاشتکار ہیں، دیہی علاقے کے مکین ہیں، ان کو شدید حد تک مشکلات کا سامنا میں سے علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں اور کتنے زرعی طور پر جو ہے وہ کیا کہیں گے اس وجہ سے کتنا ہماری نقصان بھی ہو چکا ہے؟ سر یہاں پہ تقریباً 15 سال سے دریا کٹاؤ ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم نے بہت سی درخواستیں دی حکومت کو، ڈی سی کو، کمشنر فیصل آباد کو، وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو۔ اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، صرف اور صرف کچھ سروے ہوئے ہیں جو صرف کاغذی ہیں۔ یہاں پہ عوام کا بہت سا زرعی رقبہ ہے جو دریا برز ہو گیا، جن میں سکول بھی ہیں، مسجد بھی ہے، گھر بھی ہیں لوگوں کے۔ تو یہاں پہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس کا کوئی نہ کوئی جلد از جلد حل نکالا جائے۔ اس کا ایک ہی حل ہے سٹڈ بن، وہ اگر 2025 سے پہلے ہو تو بہتر ہے، نہیں تو یہ جو آبادیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی 2025 کے فلڈ میں دریا برز ہو جائیں گی۔ مزید آگے کٹاؤ روکنا ہوگا، حکومت کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ بالکل سر کہنا فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بقیہ بچی وادیاں بھی دریا کی نظر ہو جائیں گی۔ اور اس صورتحال میں مطالبہ کیا جا رہا ہے وزارت حکومت پنجاب سے اور ڈپٹی کمشنر جنگ سے کہ صورتحال پر فوری طور پر نوٹس لے کے بند کی منظوری جو ہے وہ ممکن کی جائے تاکہ علاقہ مکینوں کو تحفظ فراہم ہو سکے۔ بہت شکریہ اویس آگاہ کرنے کے لیے۔ پیر محل کے علاقے سندھیلیاں والی میں بڑی نہر کو شگاف پڑ گیا، ٹیموں کی جانب سے شگاف کو پور کر دیا گیا۔ محکمہ انہار، محکمہ مال اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر کام مکمل کیا۔ اہل محلہ نے بھی شگاف بند کرنے میں ٹیموں کی مدد کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر بھی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ محکمہ انہار، محکمہ مال اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر کام مکمل کیا۔ اہل محلہ نے بھی شگاف بند کرنے میں ٹیموں کی مدد کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر بھی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ ابلتے گٹر تعفن پھیلاتا گندا پانی، فیصل آباد کا پوش ترین علاقہ گلبرگ بھی مسائل کا شکار، گندے پانی میں مچھروں نے بھی ڈیرے لگا لیے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے محمد علی سے۔ فیصل آباد گلبرگ بی کے علاقے میں اس وقت موجود ہوں، جہاں پر سیوریج کے ناقص انتظامات کی وجہ سے جو رہائشی ہیں، جو علاقہ مکین ہیں، ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ نقل و حرکت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، تعفن زدہ ماحول ہے اور جو ایک گلی سے دوسری گلی میں جانا محال ہو چکا ہے۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ جناب بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کب سے یہ معاملہ ہے؟ یہ تقریباً 1 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے سارا۔ یہ سیوریج بعد میں ڈلوایا ہے نیا، یہاں سے یہاں تک، تو لیکن وہ کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہی دیکھ لیں۔ ادھر سے گزرنا کیا ہے، ادھر سے چھینٹے پانی کے، نہ کوئی نمازی گزر سکتا ہے، نہ کوئی مریض گزر سکتا ہے۔ یہ فیصل آباد کا دل ہے، گلبرگ اس کو کہتے ہیں، فیصل آباد کا دل ہے۔ اگر اس کا یہ حال ہے تو باقی علاقوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں نا اس کا کیا اشارہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ادھر سے گزر، یہ ویسے مریم نواز کا یہ پنجاب ہے، صاف ستھرا پنجاب آپ کے سامنے ہے صورتحال اس کی۔ تو کیا حال انتہائی سنگین ہے۔ آپ آئیے گا، بتائیے گا واسا کو کمپلینٹ کی ہے، کیا جواب آتا ہے، آگے سے کیوں کارروائی نہیں ہو؟ ہم تقریباً میں کمپلین بھی دکھا سکتا ہوں، ہر مرتبہ ان کو کہتا ہوں یار یہ دیکھنا گلبرگ بی میں یہ حشر ہے تو اور کیا ہوگا۔ گٹروں کا بھی حال کوئی نہیں ہے اور گلی ساری ٹوٹی پھوٹی ہے، یہ بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ ان کو فون بھی کیا، یہ پانی 3 مہینے سے ایسے کھڑا ہے، لیکن اتنا بڑا مچھر ہے، ہم تصویر بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ لوگوں کو بیماری ادھر پھیل رہی ہے، اس میں سے جو ڈوگی وغیرہ آن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی راستے میں، ہم مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، وہ ڈوگی لوگوں کو ادھر نقصان پہنچاتے ہیں نکل۔ بہت شکریہ محمد علی آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں دکانوں کے واجبات ادا نہ کرنے پر انتظامیہ ان ایکشن، ڈپٹی کمشنر نے دکانوں کو سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ دکانداروں کے 8 کروڑ روپے زائد کے واجبات واجب الادا ہیں۔ تفصیلات جانیں گے مبشر حسن سے۔ جی مبشر۔
ओवर टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने म्युनिसिपल कमेटी की मलकियत दुकानों को सील करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। म्युनिसिपल कमेटी के चीफ अफसर अनवर बेग को हदायत जारी की हैं कि वो तमाम तर दुकानें जिन्होंने म्युनिसिपल कमेटी को वाजिबात अदा नहीं की है उनको फिल फॉर सील किया जाएगा। तकरीबन 54 दुकानें जंग रोड पर ऐसी हैं जिन्होंने अर्थात से वाजिबात अदा नहीं की है और वाजिबात की रकम तकरीबन 8 करोड़ रुपए बनती है। म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से इन दुकानदारों को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए, इसके बावजूद इनके वाजिबात अदा नहीं हुए। तमाम 54 दुकानदारों को पहले नोटिस जारी किए गए और उनको ये भी इनको ऑफर भी दी गई कि 50% पेमेंट कर दें तो तब भी म्युनिसिपल कमेटी उनकी दुकानों को जो है वो सील नहीं करेगी, यहाँ पर वो कारोबार कर सकते हैं। लेकिन 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा के वाजिबात अदा ना होने पर डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने सख्त एक्शन लिया और हदायत जारी की है कि दुकानों को सील किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी के जो अफसरान हैं उनको ताजर बाजी के साथ मुलाकातें भी पहले की गई, अब दुकानदारों ने मीटिंग की है, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर अनवर बेग का कहना है कि वाजिबात अदा नहीं किए जाएंगे तो दुकानों को सील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कातिल मच्छर के वार मजीद कर लिए 2 शिकार। अलाइड अस्पताल वन में जेरे इलाज 2 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। जंग के रिहायशी दोनों मरीज आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। रवा साल अलाइड वन में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 5 होगी। आपको आगाह कर रहे हैं, अलाइड अस्पताल वन में जेरे इलाज 2 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। जंग के रिहायशी दोनों मरीज आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। रवा साल अलाइड वन में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 5 हो गई है। कातिल मच्छर के वार मजीद कर लिए 2 शिकार। अलाइड अस्पताल वन में जेरे इलाज 2 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। जंग के रिहायशी दोनों मरीज आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। रवा साल अलाइड वन में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 5 हो गई है। तफसीलात मजीद जानेंगे इस हवाले से अज़हदार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अज़हदार, बताइएगा इस हवाले से। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह करें, जंग के रिहायशी दोनों मरीज आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। रवा साल अलाइड वन में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 5 हो गई है। अलाइड अस्पताल वन में जेरे इलाज 2 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। कातिल मच्छर के वार मजीद कर लिए 2 शिकार। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अज़हदार से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी अज़हदार, बताइएगा। बिल्कुल, ये दोनों मरीज जहां के रिहायशी और बुखार की हालत में अलाइड अस्पताल वन पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने इनमें डेंगू का शुबा जाहिर करते हुए इनके सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाए और बाद तस्दीक के बाद दोनों मरीजों को जो है वो आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे इस वक्त दोनों मरीज जेर इलाज है और इन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जा रही हैं। तमाम अगर रवां साल डेंगू के मरीजों की तादाद की बात की जाए तो अलाइड अस्पताल वन में रवां साल अब तक डेंगू के मरीजों की जो तादाद है वो 5 रिपोर्ट हो चुकी है, जिन्हें इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो यहाँ पे फराम की गई। जी, आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिए गए हैं। समाज दुश्मन अनासर को नकेल डालने के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। महकमे दाखिला ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मुसव्विदा तैयार कर लिया। एक्ट गुंडों की शनाख्त, निगरानी और रोकथाम के लिए जामे कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। अमने आमा और मुआशरती फलाह के लिए खतरा बनने वाले अनासर कानून की गिरफ्त में आएंगे। समाज दुश्मन अनासर को नकेल डालने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा फैसला आ चुका है। एक्ट गुंडों की शनाख्त, निगरानी और रोकथाम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। अमने आमा और मुआशरती फलाह के लिए खतरा बनने वाले अनासर कानून की गिरफ्त में आएंगे। एक्ट में गुंडों, बदमाशों की कानूनी शनाख्त वाज़ेह की गई है। गुंडा ऐसा शख्स है जो आदतन बदनज़मी, मुजरिमाना सरगर्मी या समाज मुखालिफ रवैये में मुलविस हो। गुंडा अमन व अमान के लिए खतरा और अवामी परेशानी का बायस बनने वाला शख्स है। वज़ारत दाखिला पासपोर्ट कवानीन सख्त और मजीद बेहतर करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। डिपोर्ट होने वाले अफराद से रियायत ना बरतने का फैसला। डिपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। डिपोर्टर्स के पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएंगे। तफसीलात मजीद जानेंगे इस हवाले से। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा इस पॉलिसी के हवाले से। जी बिल्कुल, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ कवानीन मजीद सख्त करते हुए डिपोर्ट होकर आने वालों पर FIR का अंदराज और पासपोर्ट भी मनसूख करने का फैसला किया गया है। ये फैसला वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में किया गया।
फैसला करते हुए ये बताया गया कि डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ फौरी तौर पर FIR का अंदराज होगा, उनका पासपोर्ट मंसूख होगा और इसी के साथ साथ उन अफराद का 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सियासी दाखिला की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी गई है। बाकी मुझे दाखिला का कहना था कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा डिपोर्ट होकर आने वालों के साथ कोई किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। जी, किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। तैयब मकबूल हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को AMI मीटर सार्फिन को सताने लगा। AMI मीटर से इजाफे बिल भेजने का सिलसिला ना रुका। 2 माह में 3 करोड़ से ज्यादा के इजाफे बिल भेज दिए गए। इजाफे बिल रीडिंग डिफरेंस के नाम पर चार्ज किए गए हैं। आपको आगाह करें, AMI मीटर से इजाफे बिल भेजने का सिलसिला ना रुका। 2 माह में 3 करोड़ से ज्यादा के इजाफे बिल भेज दिए गए। इजाफी बिल रीडिंग डिफरेंस के नाम पर चार्ज किए गए हैं। फेस्को AMI मीटर सार्फिन को सताने लगे हैं। AMI मीटर से इजाफे बिल भेजने का सिलसिला ना रुका। 2 माह में 3 करोड़ से ज्यादा के इजाफे बिल भेज दिए गए हैं। AMI मीटर से इजाफी बिल भेजने का सिलसिला ना रुक सका। इजाफी बिल रीडिंग डिफरेंस के नाम पर चार्ज किए गए। फेस्को जानबूझकर रीडिंग डिफरेंस चार्ज कर रहा है, सार्फिन का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि रीडिंग एक्यूरेसी हमारा मसला नहीं है। 2 माह में 3 करोड़ से ज्यादा के इजाफी बिल भेज दिए गए। इजाफी बिल रीडिंग डिफरेंस के नाम पर चार्ज किए गए हैं। AMI मीटर से इजाफी बिल भेजने का सिलसिला ना रुक सका। फेस्को AMI मीटर सार्फिन को सताने लगे। 2 माह में 3 करोड़ से ज्यादा के इजाफी बिल भेज दिए गए हैं। इजाफी बिल रीडिंग डिफरेंस के नाम पर चार्ज किए गए। फेस्को जानबूझकर रीडिंग डिफरेंस चार्ज कर रहा है। रीडिंग एक्यूरेसी हमारा मसला नहीं है, सार्फिन का ऐसा कहना है। अपने नाजरीन को आगाह करें, फेस्को AMI मीटर सार्फिन को सताने लगे। AMI मीटर से इजाफी बिल भेजने का सिलसिला ना थम सका। 2 माह में 3 करोड़ से ज्यादा के इजाफी बिल भेज दिए गए हैं। इजाफी बिल रीडिंग डिफरेंस के नाम पर चार्ज किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से। लगाए गए मदर AMI मीटर से जो रीडिंग की जा रही है उन पर अजाफी बिल फेस्को की जानिब से सार्फिन को भेज दिए गए हैं। गुज़िश्ता 2 माह में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के जो अजाफी बिल हैं वो फेस्को ने AMI सार्फिन को भेजे हैं। बिल देखकर सार्फिन के होश उड़ गए हैं। सार्फिन का ये कहना है कि फेस्को ने जदीद मीटर्स के नाम पर जो AMI मीटर्स लगाए हैं उनके भी अजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। फेस्को ने रीडिंग डिफरेंस के नाम पर सार्फिन को जो है वो अजाफी बिल जो हैं वो भेजे हैं। और इसी हवाले से सार्फिन की जानिब से ये एतराज़ात किए जा रहे हैं कि ये जदीद मीटर्स जो हैं वो किस काम के हैं जिन पर अजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। और हर माह फेस्को की जानिब से AMI मीटर्स के डिफरेंस चार्ज के नाम पर जो है वो बिजली के बिल भेजे जाते हैं, जिन पर सार्फिन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फेस्को के आला अफसरान इसका नोटिस लें और AMI मीटर से जो अजाफी बिल भेजे जा रहे हैं उनका सिलसिला जो है वो बंद किया जाए। और AMI मीटर्स की जो रीडिंग एक्यूरेसी के मसाइल हैं उनको भी जो है वो फेस्को हल करे। रीडिंग एक्यूरेसी दुरुस्त न होने की वजह से जो है वो डिफरेंस चार्ज किया जा रहा है फेस्को की जानिब से, जो कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो हैं उनको जो AMI मीटर लगाए गए थे उनका माहाना लाखों रुपए जो है वो अजाफी बिल बनता है। इजाफी बिल भेजने का सिलसिला बंद किया जाए, सार्फिन का ऐसा कहना है। वैसे लिए हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये इजाफी बिलिंग का मामला क्या है और इजाफी बिलिंग क्यों की जा रही है? जी, फेस्को का जो मिशन है वो यही है कि अपने सार्फिन की जो कंप्लेंट्स हैं और उनकी जो सर्विसेज है और उनकी जो बेहतर क्वालिटी की सर्विसेज है उनको मुहैया करना है। अब जो AMI मीटर्स हैं ये तमाम लगाए इसलिए गए थे ताकि इनके तमाम के बिलों में डच्चे की शफाफियत आए और ट्रांसपेरेंसी आए। एक टेक्निकली फॉल्ट की वजह के साथ जो है कुछ लॉट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आया था और जिसको टेक आउट भी किया गया और उसकी वजह से कोई आज से 5 माह पहले जो है वो डिफरेंस ऑफ यूनिट्स चार्ज किए गए थे। उसके बाद से लेके अब तक तमाम जो मीटर्स हैं हमारे बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और उनमें बिल्कुल फेयरनेस रीडिंग हो रही है और एक्यूरेट टाइम पर हो रही है। फेस्को AMI मीटर सार्फिन को सताने लगे हैं। AMI मीटर्स ट्रांसपेरेंसी की वजह से लगाए गए थे। इजाफी बिल भेजने का सिलसिला बंद किया जाए, सार्फिन का ऐसा कहना था। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा और अवैस अली हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।